معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک اور عید الاضحیٰ منانے کا موقع دیا اور اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کی راہ میں قربانی پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایک رحیم و کریم ذات ہے اور اس نے انسانوں کے لیے بہت سے مواقع، بہت سے ایسے اصول بنا دیے ہیں جو انسانی فلاح کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم نے عید قربان تو منا لی، گوشت بھی کھا لیا، لیکن ہم نے یہ احساس نہیں کیا کہ ہمیں کس طریقے سے گوشت کھانا چاہیے، کس طریقے سے اپنے آپ کو اس کے نقصانات سے بچانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، جن سے بچنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن شوم یہ قسمت، ہم اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ صابر ملتانی، حکیم صابر ملتانی پر لاکھوں بار رحمتیں نازل کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے انسانی جسم کا ایسے انداز سے تجزیہ کیا اور ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ اگر ہم چاہیں تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب 3 انسانی زہروں میں ہر چیز کو کھول کر بیان کیا۔ یہ 3 انسانی زہر جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ یورک ایسڈ ہے، صفرا ہے، اور یہ جو دماغی مادہ ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اعصابی مادہ۔ یہ 3 زہر ہے جو انہوں نے بیان کیے ہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت، اور ان کی ایک ایسی ترکیب دی ہے، اگر ہم اس ترکیب کو ذہن میں رکھیں، اس طریقے غور کر لیں تو اس کا علاج بھی انہوں نے بتا دیا۔ جہاں یہ زہر بتائے وہاں اس کا علاج بتا دیا۔ دیکھو ترکیب کیا ہے؟ دماغ بلغمی مادہ پیدا کرتا ہے، دل یا مسل جو ہے وہ یورک ایسڈ پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے غدود جو ہے وہ صفرا پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک ترکیب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی جسم میں رکھا ہے، یعنی سب سے اوپر جو دماغ ہے وہ جو بلغمی مادہ پیدا کرتا ہے اس کو سب سے اوپر ہے، اور اس کے بعد جو ہے یورک ایسڈ ہے، اور اس کے بعد صفرا ہے۔ اب علاج کی ترکیب جو کیا ہے، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں ہم یورک ایسڈ کے بارے میں بیان کریں گے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورک ایسڈ ہے جو اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے کہ بلغمی مادہ، اس کے اوپر دماغ جو ہے وہ بلغمی مادہ پیدا کرتا ہے، اور یہ اس کے بعد یورک ایسڈ آتا ہے، اور یورک ایسڈ کے بعد صفرا آتا ہے۔ اب اس کی ترتیب دیکھیں گے، اگر یہ بلغمی مادہ ہوگا تو اس کا علاج جس ترکیب سے یہ اوپر ہے، پھر بائیں طرف ہے، پھر دائیں طرف یہ چکر چلتا ہے، اسی طرح سے بلغمی مادے کا علاج جو ہے وہ یورک ایسڈ ہے، اور یورک ایسڈ کا علاج جو ہے وہ صفرا ہے، اور صفرا کا علاج جو ہے وہ پھر جو ہے بلغمی مادہ ہے۔ یہ بلغمی مادہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بلغم نہیں ہے، بلکہ ایک مادہ ہے، کیمی مادہ ہے جو انسانی جسم کا انسانی ذہن پیدا کرتا ہے، اعصاب جو ہے پیدا کرتے ہیں، یہ اس مادے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب آئیے یورک ایسڈ پر۔ یورک ایسڈ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مادہ ہے جس طرح سے دوسرے دونوں مادے انسانی جسم پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی جسم پیدا کرتا ہے، یعنی مسل پیدا کرتے ہیں، یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دل پیدا کرتا ہے۔ جیسا اس کا نام ہے یورک ایسڈ، یعنی یہ تیزابی مادہ ہے۔ اب دیکھیں گے ہم تیزابی مادے کی خاصیت کیا ہے، یعنی یہ ترش ہوتا ہے، اس میں خشکی ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے اس میں، اور یہ کلماؤں کی صورت میں انسانی جوڑوں میں بیٹھتا ہے۔ اب اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صفرا ہے، یعنی صفرا جو ہے وہ اس کو تحلیل کرے گا، تحلیل کر کے اس کو پانی بنا دے گا، اور پانی بنا کر اس کو وہ گردوں کے ذریعے سے یہ انسانی جسم سے خارج ہو جائے گا۔ اب دیکھیے
इसी तरह से जब सुफरा पैदा होगा तो उसको बलगमी मादा उसको इलाज करेगा, और बलगमी मादे का यूरिक एसिड करेगा, यूरिक एसिड का सुफरा करेगा, सुफरा का बलगमी मादा करेगा। ये इसी तरह से चक्र चलता रहेगा। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि ये मादे आपस में इनके कुछ चलने की तरकीब, जिसमें पैदा होने की तरकीब भी है, हाँ बिल्कुल इसी तरकीब भी है, और ये उसी तरकीब के साथ पैदा होता है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बना रखा है कि जब जिस्म एक मादा पैदा कर रहा होता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने दो तहरीकें बनाई हैं इंसानी जिस्म में। एक को कीमियाई तहरीक कहते हैं, एक को मशीनी तहरीक कहते हैं। कीमियाई तहरीक में वो पैदा होने वाला मादा जो है वो इसमें जमा होता रहता है, जब वो जमा होकर बढ़ जाता है तो फिर वो तकलीफ देता है। और मशीनी तहरीक में वो मादा पैदा होने के साथ साथ जिसमें खारिज होता रहता है, इसलिए वो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जब यूरिक एसिड इसमें बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि यूरिक एसिड की जो कीमियाई तहरीक है वो जिसमें ऑन होगी, वो जिसमें चल रही होगी, तो वो यूरिक एसिड जिसमें जमा होता जाएगा। अब इसका इलाज बताने से पहले मैं जो लोग यूट्यूब पर जो मशवरे दे रहे हैं, जो नसीहत दे रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, खुदारा उसे बचिए, वो इंतहाई नुकसानदेह है। देखिए एक मशहूर बात चल रही है क्या कि यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए आप सेब का सिरका या शिकंजीबीन या नींबू का पानी जो इस्तेमाल करें। देखिए गौर कीजिए, ये नींबू का पानी या सिरका वो भी एसिड है, और एसिड का हमने इलाज करना है। अब बताइए एसिड को एसिड से कैसे ठीक करेंगे, उसमें इजाफा ही होगा। यही वजह है कि जब हम अंग्रेजी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो उनसे कोई अफाका नहीं होता, बल्कि मरीज जो है, मर्ज जो है वो बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है और अफाके की सूरत नजर नहीं आती। इनके पास एक चीज है, क्या नशा दे दें, वो पेन किलर दे दें, वो पेन किलर खिलाते रहते हैं। मरीज पेन किलर खा खा कर अपनी जान को, अपने मर्ज को बढ़ाता रहता है और अपनी जान को तकलीफ में डालता रहता है। ये है वो छोटी सी बात जो मैं आपके सामने रखी है, जो पूरे सोशल मीडिया पर चल रही है कि आप सेब का सिरका इस्तेमाल करें, आप शहद सिरका इस्तेमाल कर लें, आप जो है नींबू का पानी इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं कि इनको इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं होगा। जब तक आप सुफरा पैदा करने वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी आप इस इंसानी तहरीक को बदलेंगे और इसको सुफरा पर ले जाएंगे, यानी गुदी तहरीक पर ले जाएंगे, और गुदी तहरीक में भी खास तौर पर गुदल की जो कीमियाई तहरीक है उस पर जाएंगे, तो फिर यही सुफरा जो है ये जो यूरिक एसिड है ये तब्दील होगा, ये सुफरा में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, और मरीज को सेहत होगी और उसकी जान जो है वो सुकून महसूस करेंगे। देखिए मैंने ये बात आपके सामने इसलिए रखी है कि हम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हम जो वीडियो देखते हैं उनके बारे में हमें गौर भी कर लेना चाहिए, और उस बुनियादी कानून को जो खुदा ने बनाया हुआ है उसके मुताबिक इसको चेक कर लेना चाहिए। अगर उसके मुताबिक चीज आए तो ठीक, अगर उसके मुताबिक ना हो तो उसे परहेज करना चाहिए। ये बाजारी बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए। अब इसका इलाज, यूरिक एसिड क्या करता है, ये खून को गाढ़ा करता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और तेजाबियत बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, और जब ये जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है तो जोड़ों की हरकत मुश्किल हो जाती है, इंसान दर्द से चिल्लाने लगता है, हत्ता के चारपाई पर जो लेट जाता है वो चलने फिरने काबिल नहीं रहता है। और अगर हम इसी तरह के जैसे कि तेजाब का इलाज, तेजाब से यूरिक एसिड का इलाज, यूरिक एसिड पैदा करने वाली चीजों से करते रहेंगे तो मरीज को कभी शिफा नसीब नहीं होगी। हमने उनमें सुफरा पैदा करने वाली चीजों को इस्तेमाल करना है। जब उनको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मरीज सेहतमंद होता चला जाएगा। अब आप ये चाहते होंगे कि मैं ऐसा कोई नुस्खा आपके सामने बयान कर दूं, तो वो भी लीजिए, मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। आपने क्या करना है, आप गौर से सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए। आपने रेवत खताई ये आप 100 ग्राम लेंगे, और सून जिसे खुश्क अदरक भी कहा जाता है उसको आप 50 ग्राम लेंगे, और काली मिर्च
20 ग्राम लेंगे, कलमी शोरा 20 ग्राम लेंगे, नौशादा ठीकरी 20 ग्राम लेंगे और मीठा सोडा इसमें 50 ग्राम। ये मिलाकर इसको अच्छी तरह से पिसवाकर छानकर इसके फुल साइज कैप्सूल भर लेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये एक ऐसा नुस्खा है, अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर मेरा मौला चाहेगा तो आपके जिस्म से सुफरा मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा और यूरिक एसिड आपके जिस्म में से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा और उसके अवारद जो आपको लाहक है उससे आपकी जान छूट जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये नुस्खा मैंने पहले भी बयान किया था, आपको याद नहीं होगा। जिस आदमी को भी, जिस मेरे भाई बहन को भी यूरिक एसिड की तकलीफ है, जोड़ों पर वरम है, सोज है, हरकत करने के काबिल नहीं है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनकी हर हरकत में आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना है, ये नहीं, ये हफ्ता 10 दिन में बाद नहीं है, क्योंकि ये यूरिक एसिड जो होता है ये दानेदार होता है और खुश्क शक्ल में होता है और जोड़ों में बैठा हुआ होता है, इसलिए इसके इलाज के लिए टाइम लगता है। कम अज कम 3 माह का टाइम जो है वो आप इसे देंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर तकलीफ ज्यादा होगी तो आप इसे सुबह दोपहर शाम में कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे, अगर कम होगी तो सुबह शाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और अल्लाह ताला आपको शिफा नसीब करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आपने ये करना है कि आपने जिगर की इस्लाह वाले जितने नुस्खे हैं, जो भी नुस्खा आपको जिगर की इस्लाह करने वाला मिले, जिस्म को जो है जिगर को बेहतर करने वाला मिलेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे, उसे सुफरा पैदा होगा और यूरिक एसिड से आपकी जान छूट जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हमारा तुम्हारा सबका आमीन नासिर हो और हम पर अपनी रहमत की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।